Hi guys. My name is Komal Divedi, and I'm your English instructor. So I came up with the V6 a lot, like after a lot of time. I took a long time to appear for week 5 too. But I'm very sorry. I was occupied in a few works. But I hope you understand me. But now I won't. I'm sorry. I say it every time that I won't come late, but I do, and for that I'm sorry. And it's like a prior sorry for everyone. But okay, so today I'll be taking week 6. So week 6 mein we have very small information to take away. Okay, a very piece of information you can say. क्योंकि lectures बड़े हैं and information कम है, example ज़्यादा है. तो यहाँ पे I'll teach everything in very easy perspective, in easy ways. But so let me tell you that how we'll start it. So easy way में explain करूँगी. Take your pen and papers and sit. Just that. Okay. So let's start from lecture 1. Lecture 1 में question tags दिए हुए हैं. ठीक है. क्वेश्चन टैग से पहले हमें ये बताया कि हाउ अ सेंटेंस एंड अ प्रेडिकेट इज फॉर्म्ड. फिर उसके बाद में सेंटेंसेस हैव टू टाइप्स. अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे एक कंसर्न्ड एंड वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, तो वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं. ठीक है. आई नो व्हाट आई एम डूइंग. यहाँ पे सेल्फ कंसर्न्ड है. दे हैव हैड फूड. इट्स थर्ड पर्सन कंसर्न्ड फॉर अनदर पर्सन. Raju confirmed that he will be joining the discussion. So it is that someone else is saying about Raju. So यहाँ पे किसी एक थर्ड पर्सन का कंसर्न होता है. ओके. नेगेटिव सेंटेंसेस पे आओ. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव वे में देखते हैं, कैसे जहाँ पे मैंने बोला था आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बट यहाँ पे जब मैं नेगेटिविटी इन्वॉल्व करके देख रही हूँ तो आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है. दे हैव नॉट हैड फूड. Raju did not confirm that he will be joining the discussion. तो यहाँ पे मैंने नेगेटिविटी इन्वॉल्व कर दी. टैग क्वेश्चंस में क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स हमेशा एंड में आते हैं. जैसे हे हाउ यू ऑल, आई होप यू गुड. तो यहाँ पे मैंने आई होप यू गुड जब मैंने क्वेश्चन मार्क एंड में डाला तो देयर कम्स द क्वेश्चन टैग्स. वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द एंड. यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू? You don't speak English, do you? Contraction of a sentence, of a tense, and negation is mandatory in the tag questions. Functions of tag questions is engage, verify, and confirm. Then we have influence of our first language. So what happens when we have first language? See, I belong from Madhya Pradesh, and thus my first language is Hindi. And after when I was born and I went to school, I did my secondary education, and after I got to know that there we know English, right? So after a lot of time, after my 4th or 5th grade, I started learning English. So English became my second language, and it has a wide influence on my second language, right? So I might have different accent than you who's watching me, and this happens in the influence of English. So यहाँ पे you speak English, right? This is a simple sentence. If I say you speak English, right? Now it sounds easy, simple, and it sounds like flowy. But when I say speak English, isn't it? So it sounds, isn't it? It's not a word. It's not a complex word. It's not a word should be taken off. But you know what? Isn't it is very similar, like similar to those words which we have heavy impact. ठीक है. When I say isn't it? So right की जगह when we use isn't it, so वो एक अच्छा सा impact देता है. Structure of tag question में क्या होता है? Structure of tag question एक easy सी चीज़ है, बहुत ही easy चीज़ है. इसको समझना is like simpler than anything. एक sentence ले लो कोई भी, उसके आगे do you, don't you ऐसी चीज़ें लगा दो. यहाँ पे डू यू, डोंट यू, ये सारी चीज़ें लगाने से पहले तुम्हें टेंस पता होनी चाहिए कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है,
और फ्यूचर टेंस क्या होता है। अगर टेंसेस के बारे में और पढ़ना है तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टेंसेस। तो टेंसेस में तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। टेंस हमेशा ही फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट से अलग अलग क्यों चीज़ें होती हैं। when I used to learn English in my very starting, like in my school, I was very confused about this, like is, was, or did, do you, or will you do. So I was very confused that where to use these things. So question tags, ये सब क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ने से पहले तुम्हें ये चीज़ जानना होगा कि व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू यूज डोंट यू एंड डू यू एंड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस एंड अ क्वेश्चन टैग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बाद में इस पूरी स्लाइड्स का टेक अवे यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन क्वेश्चन टैग टू साउंड इम्प्रेसिव। यस, मैंने तुम्हें बताया कि राइट इज नॉट एज इम्प्रेसिव एज इजंट इज। ओके, so we learned about negation and tenses, then we had contraction and attack questions and it's a requirement. Okay, फिर उसके बाद में आ जाओ, let's do lecture 2। जब भी मेरे वीडियोस दिखते हो ना तो ऑलवेज मेक श्योर कि तुम जो भी मैं बता रही हूँ ना उसका एटलीस्ट ऊपर ऊपर का टॉपिक ना कहीं नोट डाउन कर लो। सेंटेंस बाकी सी फर्स्ट स्लाइड सबकी सेम है। अग्रीमेंट में आ जाओ। अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट मार्किंग क्या होती है? अग्रीमेंट वो मत समझो तुम किसी चीज़ को तुम एग्री कर रहे हो, कोई तुम्हें बोलने आया है कोई चीज़ एंड यू आर एग्रीइंग ऑन इट, नो। अब यहाँ पे अग्रीमेंट मार्किंग क्या होता है? जब भी कोई सेंटेंस में सी व्हेन आई से अ सेंटेंस एंड आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई फॉर्म अ सेंटेंस और उस सेंटेंस में कोई थर्ड पर्सन अलग हो रहा होता है। लाइक माई मदर इज कुकिंग, ओके, सो माई मदर इज माई थर्ड पर्सन, कुकिंग इज द my mother cooks very good. Let's say my mother cooks very good. So mother is a third person, very good is a host, and cook is an object which is or a situation which is occurring. So यहाँ पे when we highlight a person, a number, a gender or things like that, it happens in agreement. Okay, tenses पे आ जाओ। present, past, future tenses होते हैं, ठीक है। question and a sentence, अब किसी सेंटेंस के क्वेश्चन को तुम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे डिफाइन करोगे? राजू लव्स पिज्ज़ा। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको मैं प्रेजेंट में मेरे से पूछा गया है तो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रही हूँ, व्हाट डज राजू लव, ठीक है। कोमल लाइक्स टू टीच, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँ कि इसको तुम क्वेश्चन में पूछो प्रेजेंट टेंस में, क्या बोलोगे? कोमल डज कोमल लाइक्स टू टीच, ठीक है। यहाँ पे मैंने डज लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है। अब डिड शी टीच वेल और डिड शी टॉट वेल, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी यहाँ पे, जहाँ पे मैं डिड लगा दे रही हूँ, जहाँ पे मैं विल लगा दे रही हूँ, जहाँ पे मैं डज लगा दे रही हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन टैग्स लगाने से पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। थिंग्स टू नोटिस में आ जाओ कि ये लास्ट में आकर होते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस में एक अट्रैक्शन देते हैं किसी भी सेंटेंस को। जब आप बोलते हो कि आप नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में पढ़ते हो, आगे भी कई सारी चीज़ें पढ़ते हो, हमने हमेशा से क्वेश्चन टैग्स के नाम पे हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हुए हैं रीडिंग सेक्शन के, रीडिंग बुक के इन स्कूल। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन फॉर्मेशन जो सिखाना चाहिए स्कूल में, वो क्वेश्चन फॉर्मेशन हमें सिखाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में और फर्दर कोर्सेज में। बल्कि क्वेश्चन टैग्स शुड कम फर्स्ट बिफोर अ चाइल्ड इज टॉट अबाउट इंग्लिश। तो क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है ना, एक कोई भी सेंटेंस ले लो तुम, कोई भी सेंटेंस, बट जब तुम किसी चीज़ से किसी को पूछना चाह रहे हो ना, तो क्वेश्चन वैसे इंग्लिश बुक वाले क्वेश्चन की तरह नहीं पूछोगे। यू विल आस्क इन एन वेरी इजी वे, राइट? when you'll say a sentence and you'll put some past, present, or like will you do this or will you do that or do you do this or did you do that, तो समझ रहे हो, this happens। यहाँ पे questions वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है। लेक्चर 3 पे आ जाओ। इजी सा, ये 6th वीक बहुत इजी है, सेम चीज़ें दी हुई हैं शुरू में, ठीक है, सेम ही चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे
देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं जहाँ पे एक क्लॉज छोड़ के एक से ज़्यादा क्लॉजेज एक साथ आते हैं एक ही सेंटेंसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉजेस पकड़ो तुम, लाइक्स लाइक्स, ठीक है, पर ये दोनों क्लॉजेस सेम है तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो व्हाट ही डिड, तो लाइक टू नो व्हाट ही डिड, तो ये क्लॉजेस पकड़ो, यहाँ पे डबल क्लॉज हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जहाँ पे मल्टीपल क्लॉजेस अकर होते हैं। अग्रीमेंट पे आओ, मैं बता चुकी हूँ यार, अभी जस्ट बताया तो स्लाइड सेम है इनकी। फोर्थ पे आओ, तो वेदर एंड इफ क्लॉज का इंग्लिश में यूज कैसे होता है, सी एज अ क्लॉज दे अपीयर इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। अपीयर in form of indirect question, hence add mildness to the question। अब देखो, अगर मैं what are you doing ऐसा पूछूं तो तुमको एक थोड़ा रफ लगेगा, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि if you're doing some work can you stop it and do mine, तो ये थोड़ा it's like a request, it's like वो जो क्वेश्चन का जो भार है ना पूरा कम हो गया है, ठीक है, एक लाइट क्वेश्चन बन गया है। when I have like if involved in it and I have like whether involved in it, तो ऐसा ऐसी I don't know whether she will come or not, so whether यहाँ पे क्यों लगा है, ताकि it goes a light, it can be used in a casual language or in a casual way। तो she asked me if I was going, तो यहाँ पे if लगा दिया। अब difference between whether and if, see we use whether not if before to infinitive। I'm not sure, यहाँ पे sure whether में, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती थी I'm not sure if to get a new laptop। whether क्यों यहाँ पे आया है, क्योंकि सी वेदर तब यूज होता है जब आपके पास में एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस को ना ऐसे झूला बना दिया गया है, मतलब उसके इधर भी वो प्रेशर है और उसके पीछे भी वो प्रेशर है, मतलब दोनों साइड से आप बोलोगे ये क्या बात कर रही है, नहीं मैं कोई बात नहीं रही, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो एक सेंटेंस है, वहाँ पे जैसे ये वाला सेंटेंस लो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। टू गेट अ न्यू लैपटॉप, ये एक सेंटेंस है। इसके बीच में हम इफ़ नहीं लगा सकते। हम इफ़ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इफ़ एक बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं लाता है, वेदर लेके आता है। वेदर हम तब लगाते हैं जब हमें कोई एक सेंटेंस में दो सिचुएशन है। आई एम नॉट श्योर भी एक सिचुएशन है कि आई एम नॉट श्योर इफ़ टू गेट समथिंग और नॉट, और इफ़ टू गेट अ लैपटॉप इज़ अनदर सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ बीच में श्योर और इफ़ नहीं लगाते साथ में, ठीक है, बट श्योर वेदर लगा देते हैं इस सेंटेंस पे, क्योंकि वेदर दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलता है, इफ़ बैलेंस नहीं करता, ठीक है। आफ्टर प्रेपोजिशन वी यूज वेदर नॉट इफ। सी प्रेपोजिशन आगे यहाँ पे देर आर डाउट्स अबाउट प्रेपोजिशन, ठीक है, वेदर आ गया। वेदर कैन बी फॉलोड बाय और नॉट, बट इफ डज नॉट अकर इन सच केसेस, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे केसेस में वेदर अकर हो जाता है, पर नॉट और नॉट के साथ में वेदर कैन अकर, बट इफ़ कैन नॉट अकर। दोनों की एक अपनी डूज एंड डोंट्स है, क्या डूज एंड डोंट्स कह रही हूँ, वो जो डिफरेंशिएट बिटवीन होता है ना, वैसे बीच में लाइन खींच के लिखते हैं वो। नेचर ऑफ प्रेडिकेट में आओ। नेचर ऑफ प्रेडिकेट में क्या होता है, शी आस्क्ड इफ आई लाइक डोसा और नॉट, ठीक है। आई कांट टेल whether she likes me or not. It's like examples. Lecture 5 पे आ जाओ। I'm sorry, ठीक है। That clause in English sentences, complex embedded sentences. Embedded sentences सुन के तुम्हें embedded का मीनिंग समझ आ रहा होगा, कुछ तो भी दिमाग में आ रहा होगा। Embedded का मतलब क्या होता है, जब हम एक ही चीज़ में कोई चीज़ छुपा के बैठे होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर एक छोटा उसको बच्चा सेंटेंस होता है, ठीक है। a mother duck and a daughter duck, तो वो दोनों एकदम साथ में से घुस जाएं तो साउंड क्रीपी, पर हाँ ऐसे ही एम्बेडेड सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस होता है, तो उसे एम्बेडेड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैंने बता दिया, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। फाइनाइट क्लॉजेस, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट क्लॉजेस, ठीक है। आई वांट टू गो, आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, फाइनेस्ट, ओके।
I want him to go non-finite. You want him, पर अगर उसने मना कर दिया तो वो वहाँ पे नॉन फाइनाइट हो जाएगा. फाइनाइट क्लॉजेस में क्या आएगा कि आई बिलीव यू कैन डू दिस. तो वहाँ पे यू कैन नॉट चेंज माई परसेप्शन. ओके, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकते हो. पर इफ़ यू से दैट यू वांट टू बिलीव मी, तो वहाँ पे यस वो नॉन फाइनाइट में आएगा. नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. 2 क्लॉजेस नहीं है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक ही क्लॉज है. दैट क्लॉज इज एज सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, दैट क्लॉज एज सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. यहाँ पे दैट जो चीज़ है दैट एक क्लॉज है. सुन के ही समझ आ रहा है कि दैट एक क्लॉज है. पर क्लॉज कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है. दैट मैरी वुड फॉरगेट जॉन सो क्विकली वॉज रादर अ शॉक. ठीक है, दैट राजू डिलीवर्ड अ गुड लेक्चर प्लीज्ड रामू. ओके, सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन, मतलब यहाँ से इस लेक्चर में ये मेन पॉइंट रख लो तुम कि क्लॉजेस सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आ गया एंड दैट क्लॉज आ गया. डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी. सो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, एक जो वर्ब्स होते हैं ना जो ट्रांजिशन लेते हैं. ठीक है, टिकटॉक वाला नहीं, इंग्लिश में भी ट्रांजिशंस होते हैं. तो जब कोई भी वर्ब 2 तरीके से काम करता है, ठीक है, तो उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है. दैट एक क्लॉज है. ठीक है, टेल इन्फॉर्मेशन, टेल, इन्फॉर्म, एडवाइस, अश्योर, कन्विंस, रिमाइंड, प्रॉमिस, टीच. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ही ईमेल्ड हिज रिस्पॉन्स क्विकली. अब यहाँ पे तुम ये एक्सरसाइज तुम खुद से करना. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में तुम्हें पहले भी बताया है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहे होते हैं, जो तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करने वाले होते हैं. ठीक है, थिंग्स टू नोटिस में वही दिया हुआ है कि इस पूरे में हमने क्या किया. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़े, एम्बेडेड सेंटेंसेस मैंने तुम्हें बता दिए. ठीक है, कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस, ये पॉइंट मार्क कर लो कि कोऑर्डिनेट सेंटेंस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कोऑर्डिनेट सेंटेंस क्या होता है, जब 2 सेंटेंसेस साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हो, 2 ही सेंटेंसेस होते हैं, वो एक ही सेंटेंस बने हुए होते हैं. तो दैट हैपेंस इन दिस. सो we're done with week 6. Put your thumbs up when you see this video. Also leave a like, a good like. अच्छे अच्छे कमेंट्स डाला करो यार, मोटिवेशन मिलता है. ऑल्सो आई एम सॉरी अगेन कि मैं लेट आती हूँ, मैं लेट पढ़ाती हूँ. बट आई विल ट्राई टू डू week 8 तक एटलीस्ट as soon as I can. And have a nice day. Stay happy, stay healthy.